থ্যাংক ইউ এভরিওয়ান। দারুণ লাগছে কিন্তু, যেন মনে হচ্ছে আপনারাও মাঝে মাঝে একবার করে এসে দাঁড়াবেন, দেখবেন। সত্যি খুব ভালো লাগছে আজকে। তার কারণ 6 মাস আগে একটা সিদ্ধান্ত, একটা স্বপ্ন, ড্রিম, আজ 6 মাস পরে সেই স্বপ্নটা যখন বাস্তব হচ্ছে, সেটা দেখতে খুব ভালো লাগছে। এবং সেই জন্য আমি সবথেকে বেশি খুশি আজকে। আমি জানি না আপনারা কতটা খুশি, তার থেকে আমি বেশি খুশি। তার কারণ আমার সেই ইচ্ছে আজকে চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি। সাদা সাদা পোশাক পরে নিউট্রিশনিস্টরা বসে আছে সারি সারিবদ্ধভাবে, এবং তারা তাদের এলাকায় গিয়ে এই ড্রেসটা পরে মানুষদেরকে রাস্তা দেখাবে, পথ দেখাবে। তাদের সঙ্গে আমার সম্পর্ক থাকবে কি না, তাদেরকে সঙ্গে আমার পরিচয় আমার থাকবে কি না, কত বছর তারা এই প্রফেশনটাকে করে যাবে তাদের এলাকায়, এবং কত বছর ধরে তারা তাদের মানুষদেরকে সহজ রাস্তা দেখাবে। প্রত্যেকটা ঘরে ফিওনা পরিবারের এই কথা আলোচিত হবে, সেটা ভেবে খুব ভালো লাগছে। আমরা নিউট্রিশন নিয়ে পড়াশুনো করেছি, নিউট্রিশন ফর ফিজিক্যাল বডি, নিউট্রিশন ফর ফিজিক্যাল বডি, বাট নিউট্রিশন অলসো আমাদের দরকার মনের জন্য, মেন্টাল বডির জন্য। এই যে আমি আবৃত্তি করলাম, ইটস আ ফুড ফর মেন্টাল বডি। তার মানে মানুষের জীবনে ফিজিক্যাল বডির সঙ্গে মেন্টাল বডিরও কিন্তু একটা সম্পর্ক আছে। এই যে আপনি আমাকে দেখতে পাচ্ছেন, আমি আপনাদেরকে দেখতে পাচ্ছি, ইটস আ 40%, রেস্ট অফ দ্য 60% আওয়ার মেন্টাল বডি। তার মানে মেন্টাল বডি কিন্তু অনেক বড়, ফিজিক্যাল বডি অনেক ছোট। তার মানে ফিজিক্যাল বডির যে সমস্ত ফুড নিউট্রিশন নিয়ে আমরা কথা বলছি, তার সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু মেন্টাল বডির একটা অসম্ভব রকম বড় যোগাযোগ আছে। সেইটা কিন্তু ভুলে গেলে চলবে না নিউট্রিশনিস্টদের। সুতরাং মানুষের মনের খোরাক, মানুষের প্রেম, ভালোবাসা, মহব্বত, মানুষের কান্না, মানুষের হাসি, মানুষের খুশি, মানুষের মান সম্মান, এগুলো কিন্তু মানুষের মনের খাবার। সুতরাং কোনো মানুষ যখন আপনাকে এসে বলছে আমার শরীর খারাপ, তার মানে আপনাকে জানতে হবে সেই লোকটার মনটাও কিন্তু খারাপ। শুধু শরীর খারাপ নয় কিন্তু, কারণ মানুষের শরীর শুরু হয় খারাপ তার মন দিয়ে। তারপরে সেই মনের ছায়া যখন মানুষের শরীরের ওপর পড়ে, তখন তার শরীর খারাপ হওয়া শুরু করে। এই যে আমি দাঁড়িয়ে কথা বলছি, আমার কাছে একটা মেসেজ আসবে, আমার বাড়ির কেউ মারা গেছে, আমি অজ্ঞান হয়ে যেতে পারি, শুধু একটা মেসেজ। তার মানে একটা শব্দ, আমি এলাম, আমি হঠাৎ করে শরীর খারাপ করলো আমার। আবার এক্ষুনি একটা মেসেজ, আমি নাচতে শুরু করে দিলাম, 1 কোটি টাকা লটারি লেগে গেছে। কত খুশির ব্যাপার! ধরুন একটা খুশির শব্দ আমাকে খুশি দিচ্ছে, আমাকে অখুশি দিচ্ছে, আমার চোখের কান্না এনে দিচ্ছে, আমার মুখে হাসি এনে দিচ্ছে। তার মানে শরীর সুস্থ হওয়ার জন্য যেমন নিউট্রিশনের প্রয়োজন, শরীর সুস্থ থাকার জন্য মনের নিউট্রিশনটাও কিন্তু বড্ড জরুরি। সুতরাং সেটা কিন্তু ভুলে গেলে চলবে না। সারা জীবন বাচ্চার মতো থাকতে হবে। বাচ্চারা যেমন কি করে, নিউট্রিশন কেড়ে কুড়ে খেয়ে নেয়, মায়ের কাছ থেকে, বাবার কাছ থেকে, দাদার কাছ থেকে, বন্ধুর কাছ থেকে, একটু কান্নাকাটি করে তারপরে হা হা হি হি করে হাসছে। সুতরাং তার কোনো রকম ধরনের আবেগ বা অভিমান নেই বা ইগো নেই। যত আমরা বড় হই আমাদের অসুস্থতা বাড়ে। তার কারণ কি বলুন তো? কারণ আমরা ইগোকে বড় করে ফেলি। আর ইগো কি করে? আমাদেরকে অসুস্থ করে দেয়। ইগো কি? মানুষের অহংকার। মানুষের অহংকার, আমার অনেক টাকা, আমার অনেক বড় গাড়ি, তুমি জানো আমার ব্যাংক ব্যালেন্স কত, তুমি জানো আমি কত বড় ডিগ্রি ধারণ করেছি। সুতরাং এই যে আপনারা নিউট্রিশনিস্ট, আপনারা কোনো দিন ভাববেন না আমরা নিউট্রিশন পড়াশোনা করেছি, তুমি জানো, আমরা জানি। সুতরাং কোনো দিন এই ধরনের ভাবনাকে মনের মধ্যে পোষণ করবেন না। তাহলে কি হবে? তাহলে আপনার ইগো বেড়ে যাবে। আপনার ইগো যখন বেড়ে যাবে তখন শরীর খারাপ শুরু হয়ে যাবে। সুতরাং মানুষের শরীরের জন্য আমাদের কি ফিজিক্যাল ফুড এবং মেন্টাল ফুড দুটোই কিন্তু জরুরি। সুতরাং খবর নেবেন তার বাড়িতে কোনো ঝগড়া হয়েছে কি না, খবর নেবেন সে কেমন আছে, তার মনটা কেমন আছে, তার সন্তানরা কি করে, তার বাবা কি করে। সুতরাং এই সমস্ত ঘটনা যখন আপনি শুনবেন, বুঝতে পেরে যাবেন তার শরীর খারাপের মেন কারণ কি। তার কারণ তার মনটা অনেক খারাপ থাকে, সে ঘুমোতে পারে না। আর যখনই মানুষ ঘুমোতে পারে না, মন খারাপ, তখন দেখবেন তার শরীরে হরমোনাল ডিসঅর্ডার। তখন আপনি বাইরে থেকে প্রোডাক্ট দিয়ে কিছু করতে পারবেন না। হরমোনাল ডিসঅর্ডার হলে কী হবে? তার কনস্টিপেশন প্রবলেম হয়ে যাবে। তার কারণ তার কর্টিসল হরমোন বেড়ে আছে, তার যে অ্যাড্রিনাল গ্ল্যান্ড হরমোন, সে হরমোন বেড়ে আছে। অ্যাড্রিনাল গ্ল্যান্ড হরমোন আপনার কী করছে? আপনার ক্রোধ দিচ্ছে, রাগ দিচ্ছে, দেখে নেবো তোমাকে আমি, শেষ করে ফেলে দেবো তোমাকে আমি, তুমি জানো আমি কে, ধ্বংস করে দেবো তোমাকে আমি। আমরা এই সমস্ত কথাগুলো ভেবে কী করে আমাদের ব্লাড প্রেশার বাড়াই। সেই জন্য বাড়িতে যখনই আপনি ঘুমোতে যাবেন, মনের একটা মেডিসিন খেয়ে নেবেন, হাত জোড়ে করে বলবেন, ভগবান যদি আজকে কারুকে আমি কোনো দুঃখ দিয়ে থাকি,
তাহলে আমি তাদের কাছে হাত জোড়ো করে পায়ে ধরে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি, আমার ভুল হয়ে গেছে, আমি কাল থেকে এই ধরনের দুঃখ দেওয়া কাজ কারোর সঙ্গে করব না। দেখবেন আপনার যে ঘুমটা আধ ঘন্টায় আসতো সেই ঘুমটা 2 মিনিটে চলে আসবে। তার কারণ কি? কারণ আপনার মনটা অনেক হালকা হয়ে যাবে, আপনি ক্ষমা চাইতে পেরেছেন। তার মানে আমরা শরীরের সম্বন্ধে কথা বলছি, মানুষের বেঁচে থাকার জন্য কথা বলছি। বেঁচে থাকার জন্য কিন্তু আপনার এই সমস্ত জিনিসগুলো দরকার। শুধু নিউট্রিশন দিয়ে দিতে হবে, কার্বোহাইড্রেট, প্রোটিন, ফ্যাট দিয়ে দিতে হবে, তাহলে আমাদের সঙ্গী চাঙ্গা হয়ে যাবে, এরকম কিন্তু নয়। একটা সময় পরে দেখবেন আপনার শরীর চাঙ্গা হচ্ছে না ফ্যাট, প্রোটিন, কার্বোহাইড্রেটে, ভালোবাসার প্রয়োজন হচ্ছে। সত্যিকারের ভালোবাসা, সত্যিকারের বন্ধুত্ব প্রয়োজন, বন্ধুত্ব, ফ্রেন্ডশিপ। আজকের দিনে দাঁড়িয়ে আমাদের মোবাইলের সঙ্গে যত বন্ধুত্ব বাড়ছে, আমাদের মানুষের সঙ্গে মানুষের বন্ধুত্ব কমে যাচ্ছে। আমরা হোয়াটসঅ্যাপে বেশি বন্ধুত্ব করছি, আমরা গুগল, ফেসবুকে বেশি বন্ধুত্ব করছি। মানুষের সঙ্গে মানুষের, আমরা দুজন বসে আছি, বাসে আসছি, কথা বলছি না কারোর সঙ্গে, কেমন আছো, কোথা থেকে এসছো, আমরা কথা বলছি না। তার মানে আমরা একটা মেশিন মানুষ হয়ে যাচ্ছি অটোমেটিক। আর মেশিন মানুষের শরীর কিন্তু খারাপ হবেই। তার কারণ মেশিন হলে চলবে না। মানুষ একটা জৈবিক জীব, প্রকৃতি থেকে তারা এসেছে, প্রকৃতির উদ্দেশ্যে, প্রকৃতির সঙ্গে তাদের ছন্দবদ্ধ বাস্তব হবে, একসঙ্গে তারা থাকবে, হা হি করবে, কান্না হাসির জীবন দোলায় দুলবে তারা, তাহলে তাদের জীবন কিন্তু সুস্থ থাকবে। সুতরাং এই কথাগুলো আমাদের অ্যাজ এ নিউট্রিশনিস্ট মনে রাখতে হবে। সেকেন্ড যে কথাটা আমি আপনাকে বলবো, আপনি নিউট্রিশনিস্ট হন, আর্টিস্ট হন, কিংবা আপনি সঙ্গীতজ্ঞ হন, বিক্রি করা কিন্তু আপনাকে শিখতে হবে। যদি আপনি বিক্রি করা না জানেন, তাহলে এই পোশাক আপনাকে কিন্তু ভারী করে দেবে, আপনাকে দুঃখী করে দেবে। তার কারণ আপনি বিক্রি করতে জানেন না। একজন ডাক্তারকে বিক্রি করতে হবে, একজন সিঙ্গারকে বিক্রি করতে হবে, একজন লয়ারকে বিক্রি করতে হবে, একজন পলিটিক্যাল লিডারকে বিক্রি করতে হবে, একজন লাভার, একজন প্রেমিক, প্রেমিকাকে বিক্রি করতে হবে, একজন বাবাকে বিক্রি করতে হবে, মাকে বিক্রি করতে হবে, স্টুডেন্টকেও বিক্রি করতে জানতে হবে। কারণ পৃথিবীতে বিক্রি করা ছাড়া তুমি বেঁচে থাকতে পারবে না। যে ভালো বেশি বিক্রি করতে পারে সে বেশি ভালোবাসা পায়। যে বেশি বিক্রি করতে পারে তার গাড়ি বাড়ি বেশি, যে বেশি বিক্রি করতে পারে তার মান সম্মান বেশি, যে বেশি বিক্রি করতে পারে সে অনেক খুশি থাকে। পৃথিবীতে যত দুঃখী মানুষ তারা কারা? তারা বিক্রি করতে জানে না, তাদেরকে বিক্রি করা তাদের আসে না। তার কারণ তারা গোমরা মুখে থাকে, তারা মানুষের সঙ্গে মানুষের কমিউনিকেশন করে না, তারা প্রেজেন্ট করতে পারে না। হু অ্যাম আই, আমি কে, আমি কি করতে চাই, আমি কি বলতে চাই, তারা প্রেজেন্ট করতে পারে না। তার কারণ প্রেজেন্টেবিলিটি যদি খারাপ থাকে, মানুষ আপনার সঙ্গে কথাই বলবে না, সুতরাং আপনি বিক্রিই হবেন না। একজন ভালোবাসার মানুষ আরেকটা ভালোবাসার মানুষকে কি বলে? আমি তোমাকে কত ভালোবাসবো, তোমাকে কত ভালো রাখবো, তোমাকে কিভাবে যত্ন করব, তুমি দেখো আমাকে, এই দেখো সোনা, এই দেখো তোমার, আমি তোমাকে কত ভালোবাসি। এগুলো আমরা বলে কি করি? নিজেদেরকে বিক্রি করি। আমরা একে অপরকে বিক্রি করি। একজন হাজব্যান্ড একজন ওয়াইফকে বিক্রি করছে, একজন ছেলে তার বাবাকে বিক্রি করছে, বাবা ছেলেকে বিক্রি করছে, তার ফলে সম্পর্ক তৈরি থাকছে। সুতরাং নিউট্রিশনিস্ট হয়ে গেছি বলে স্যার আমার তো আর বিক্রি করা লাগবে না, এইটা কিন্তু ভুলে গেলে হবে না। আমার পড়াশুনো শুরু হয়েছিল অ্যাজ এ আর্টিস্ট হিসেবে। গভর্নমেন্ট আর্ট কলেজে আমি মডেলিং অ্যান্ড স্কাল্পচার করি। আমি সেখানে কন্টিনিউ করতে পারিনি, তারপরে চলে আসি এলএলবিতে। আমার মনে হয়েছিল আমি ব্যারিস্টারি করব। ব্যারিস্টারি এলএলবি কমপ্লিট করার পরে আমি সেখানেও 1-2 বছর টিকে থাকতে পারিনি। মানুষের ডিভোর্স করে আর ভাইয়ে ভাইয়ে ঝগড়া করে সেখান থেকে পয়সা নিয়ে সংসার চালাবো, এরকম ধরনের মানসিকতা তৈরি করতে পারছিলাম না। সেখান থেকে চলে আসি হেলথ সেক্টরে। সব জায়গায় যখন আমি শিফট করছি তখন দেখতে পাচ্ছি যে আমার ডেভেলপমেন্ট আটকে আছে একটা কারণের জন্য, আমি বিক্রি করতে পারি না ভালো। গ্রামের ছেলে, মুখ নিচু করে থাকি সব সময়, কারোর সঙ্গে কথা বলি না, কারোর সঙ্গে চোখে চোখ পড়লে আমার বুক ডিপ ডিপ করে, ভয় লাগে। हिंदी में कुछ डिमांड था। सो जब किसी के साथ मैं बात करता हूँ, किसी के सामने मैं खड़ा रहे तो मेरा डर लगता है। घर में अगर कोई आ जाएगा तो मेरे को 1 घंटा लगता है मेरा मेंटल प्रिपरेशन करने के लिए, मैंने कैसे उसके सामने जाकर खड़ा होऊंगा, कैसे उसके साथ मैं बात करूँगा। सो ये जो प्रैक्टिस था, इस प्रैक्टिस को मैंने जब थोड़ा थोड़ा करके डेवलप किया, तब जब मैं जा रहा हूँ मेरा डेवलपमेंट हो रहा है। आई कैन एक्सप्रेस माई सेल्फ। मैं जब एक्सप्रेस कर पा रहा हूँ, जब मैं विदेश में गया, जब मैं अननोन लोगों के साथ, जैसे मेरे को ऐसी नौकरी मिला, ऐसे मेरा काम मिला, एवरी डे सर वो आपके साथ मीटिंग करने आया, सर वो बैंक वाला आया, सर वो लॉयर, एवरी डे मेरे को डर लगता है बात करने में, भाई इतना लोग मेरे साथ क्यों बात करने आ रहा है। मैंने सोचा अगर इन लोगों के साथ मैं बात नहीं कर पाऊँगा, सो मेरा ये जो पोजीशन है, इस पोजीशन में मैंने रहने के लिए मैं लायक नहीं रहूँगा।
जैसे आप लोग सब मेरे को घूम रहे हो, मेरे को देख रहे हो और मेरे को बोलना पड़ रहा है सबका आंखों के आंखों रख कर। तो ये प्रैक्टिस मेरा नहीं था। जब बेचने का जो कलाकारी है वो मेरे को आया, तब मैं देख पा रहा हूँ मेरा डेवलपमेंट हो रहा है। डेवलपमेंट, एक ह्यूमन बॉडी का डेवलपमेंट एक सेल के साथ आता है। इसके बाद मैं जो चीज़ आप लोगों को बोलूँगा वो है ड्रीम वर्सेस रियलिटी। ड्रीम वर्सेस रियलिटी। जब आप जिंदगी में आते हो, आपका शुरुआत एक ड्रीम के साथ होता है। मेरे पास गाड़ी रहेगा, घर रहेगा, मैं तो विदेश जाऊंगा, मेरा बैंक बैलेंस रहेगा, हम लोग सब मिलकर एक बार नेशनल ट्रिप करेंगे, इस होटल में खाएंगे, ऐसे कपड़ा पहनेंगे, ये ज़िंदगी हम लोग जिएंगे। इट्स ऑल अ ड्रीम। लेकिन जब रियलिटी है, मैं एक सिक्योरिटी गार्ड का नौकरी करता हूँ, उसका ड्रीम क्या है? वो बड़ा बड़ा गाड़ी चढ़ेगा, वो बड़ा बड़ा घर में जाकर रहेगा, वो अच्छा कपड़ा पहनेगा, अच्छा खाना खाएगा, उसका वो ड्रीम है। लेकिन काम कौन सा करता है? एक सिक्योरिटी गार्ड का। सो कभी उसका ड्रीम फुलफिल नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो काम वो करता है उस काम से यहाँ वो पहुँच नहीं पाएगा। सो मैंने जो मेरा ज़िंदगी को शिफ्ट किया ओनली बिकॉज ऑफ दैट, मेरा सपना बहुत बड़ा है। क्योंकि जहाँ से मैं बिलोंग्स करता था वहाँ से मेरे को लग रहा था भाई दुनिया के साथ मेरा कनेक्शन रहना चाहिए और फाइनेंशियल फ्रीडम मेरे को चाहिए। फाइनेंशियल फ्रीडम मतलब जो मर्जी मैं कर पाऊँ, दैट इज कॉल्ड फाइनेंशियल फ्रीडम। सर्वाइव किसको बोला जाता है? सर्वाइव जिसका 4 लाख रुपया का इनकम कम है, 4 लाख रुपीज इनकम पर मंथ अगर आपका है, सो यू आर आ सर्वाइव, मतलब आप सर्वाइव कर रहे हो। मतलब एक रिक्शा वाला जैसे लाता है खाते हैं, लाते हैं खाते हैं, ऐसे चलता है। मतलब 4 लाख रुपीज़ का नीचे अगर आपका ज़िंदगी है, सो आपका ज़िंदगी सर्वाइव काट रहा है, सिक्योरिटी नहीं है। 4 लाख रुपया, आप बोले सर 4 लाख तो मेरा ज़िंदगी बना देगा, मैं तो अभी 10,000 में खड़ा हूँ। आप 4 लाख पे पहुँचने के बाद आपको लगेगा भाई कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं चल रहा है। आज इंडिया में जिस जगह में आप बैठे हो, 4 लाख रुपीज़ पर मंथ आपको चाहिए मिनिमम। अगर 4 लाख रुपीज़ आपके पास है तो उसको बोला जाता है सर्वाइव कर रहे हो। सिक्योरिटी उसके ऊपर, फाइनेंशियल सिक्योरिटी किसको बोला जाता है? अगर 6 महीना आपको नौकरी से सैलरी नहीं आया, आपका बिजनेस नहीं चल रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, फिर भी आपका फैमिली अच्छा खासा चल रहा है, 6 महीना मतलब 4 लाख इंटू 6 कितना हो रहा है? हाँ, 24 लाख। 24 लाख आपका अगर अकाउंट में पड़ा है, 24 लाख आपका अकाउंट में अगर पड़ा है, आप बोलेंगे सर मेरा जमीन है, जमीन नहीं है, 24 लाख आपका अकाउंट में पड़ा रहना चाहिए। उसको बोला जाता है फाइनेंशियल सिक्योरिटी। मतलब आप सिक्योर हो, 6 महीने तक आपका ज़िंदगी बच जाएगा। सो फाइनेंशियल फ्रीडम उसके ऊपर, मतलब आपके पास, आप अभी साइंस सिटी से निकलोगे, आपको लग रहा है मेरे को भूख लग रहा है, जब भी भूख लगेगा देखोगे आपको दिखाई देगा आईटीसी रॉयल, आप बोलेंगे चलो खाना खा लेते हैं। लेकिन अभी आप जाते हो क्या? आप बोलेंगे भाई अगर वो मैं वहाँ जाऊँगा तो मेरे को 1 महीने के लिए पकड़ लेगा वो लोग, क्योंकि मेरे को वहाँ बर्तन मांजना पड़ेगा, काम धाम करना पड़ेगा, तब जाकर मेरा बिल चुकता होगा। सो मैं नहीं जाऊँगा। मैं क्या करूँगा, यहाँ से पापड़ी चाट खा लूँगा, यहाँ से ऐसे खा लूँगा। भाई ये तो हमारा खाना है, भाई ये बहुत बढ़िया खाना है। मतलब आपका मनपसंद जिंदगी आप नहीं जी पाते हो। सो मतलब फाइनेंशियल फ्रीडम आपके पास आया ही नहीं। फाइनेंशियल फ्रीडम मतलब आप जो मर्जी चाहते हो, जैसी चाहते हो, ऐसा ज़िंदगी आप कंटिन्यू कर सकते हो, इसके नाम है फाइनेंशियल फ्रीडम। सो मेरे को एक क्वेश्चन किया था, भाई समीर तेरा जन्म हो गया शाहरुख खान फैमिली में, तो चल रहा है, तेरा दिख रहा है तेरा घर में कैसे चल रहा है ज़िंदगी, जैसे कट रहा है फैमिली में। पापा जो था मेरा एक सरकारी नौकरी करता था, ही इज ए इंजीनियर, लोकोसेट इंजीनियर। सो मेरा 3 भाई, हम लोग स्कूल में पढ़ाई कर रहा है और एवरीडे लड़ाई चल रहा है कैसे कैसे ज़िंदगी चलेगा। पापा, दादा का जो पैंट है वही मेरा पैंट है, दादा का शर्ट वही मेरा शर्ट है, दादा का किताब वही मेरा का किताब है। सो सब कुछ वो पुराना वाला चीज़, दादा का जूता मेरा जूता। सो गुस्सा होता था मन में, मेरा कब नहीं आएगा, मेरा नाम में कब जामा आएगा, मेरा नाम में कब जूता आएगा, मेरा नाम में कब स्कूल बॉक्स आएगा, मेरा नाम में कब वाटर बॉटल, मेरा नाम में कब आएगा। सो उसके लिए मेरा सोच था, और उस टाइम से मेरा सोच मैंने ऐसी बना लिया, भाई ज़िंदगी अगर होगा सो मैं जैसे चाहूँ ऐसा मेरा ज़िंदगी होना चाहिए। तो वो ज़िंदगी कहाँ से मेरे को मिलेगा? अगर मैं एक आर्टिस्ट बन जाऊँ, वहाँ मेरे को हो सकता है 15, 20, 20, 30, 40 हज़ार मेरे को मिल जाएगा।
मैं अगर LLB एडवोकेट बन जाऊँ तो हो सकता है वहाँ 50, 60, 70, 80 मिल सकता है। अगर मैं कोई जगह में नौकरी कर लूँ हो सकता है 1 लाख तक मेरे को मिलेगा, लेकिन फाइनेंशियल फ्रीडम वो कहाँ से मिलेगा? ये मेरा क्वेश्चन था, फाइनेंशियल फ्रीडम वो कहाँ से मिलेगा? सो फाइनेंशियल फ्रीडम उसी को मिल सकता है जिसको सेल्स आता है, सेल्स। सो बाय डिजाइन मैंने सेल्स में नहीं आया, बाय डिफॉल्ट आया। क्यों? मेरा जो ड्रीम जॉब मैंने देखा, उस ड्रीम को अगर फुलफिल करना होगा तो सेल्स एकमात्र रास्ता है जो मेरा उस ड्रीम को फुलफिल कर सकता है। सो इसी के लिए मैंने सेल्स में आया, क्योंकि मेरा जो चेक है उस चेक में जो अमाउंट है मैं खुद लिख सकता हूँ। कितना मेरे को पैसा चाहिए, कितना मेरे को सक्सेस चाहिए, मैं उसको खुद लिख सकता हूँ। इसीलिए मैंने सेल्स में आया। मैं मेरे को पूछता हूँ, भाई ज़िंदगी में तेरे को गाड़ी चाहिए कि नहीं चाहिए? तेरे को बॉम्बे में घर चाहिए कि नहीं चाहिए? तेरे को फॉरेन ट्रिप चाहिए कि नहीं चाहिए? तेरे को तेरा जो फैमिली है उस फैमिली को इंटरनेशनल ट्रिप देना चाहिए कि नहीं चाहिए? मैं बोल रहा हूँ हाँ भाई हाँ, मैं चाहता हूँ। तो चाहता हूँ तो करता क्या है? करता क्या है? सो उस क्वेश्चन जो मैंने किया तब मैंने देखा जो सिचुएशन में, जिस ऑर्गेनाइजेशन, जिस मतलब क्षेत्र में मैं था, उस क्षेत्र मेरे को छोड़ना पड़ा, क्योंकि वो मेरे को वो जिंदगी नहीं दे पाएगा। सो इसीलिए माय डियर फ्रेंड्स, आप एक ड्रेस तो आप पहन लिया, उसको आपका ड्रेस ऐसे नहीं वो आपका करियर बन गया ऐसे आप मत सोचो। आपको सोचना क्या पड़ेगा? मेरा ड्रीम कैसे फुलफिल होगा, मेरा ड्रीम। क्योंकि आपका ज़िंदगी के साथ एक वादा करके आए थे। आपका जो पापा है, मम्मी है, आप उसका एक ड्रीम हो, सपना हो, सपने के टुकड़ा हो। सो वो भी आपके लिए काफ़ी सारा सपना देखे थे। उस सपना कब आप पूरा कर पाओगे? ये तो एक जरिया है। न्यूट्रिशनिस्ट एक जरिया है, न्यूट्रिशनिस्ट ड्रेस एक जरिया है, लेकिन आपको पहुंचना कहाँ पड़ेगा? आपका ड्रीम तक। सो आपका ड्रीम तक जाने के लिए फियोना हार्बल के पास वो औकात है, वो क्वालिटी भी है, और उसके साथ आप भी चल रहे हो। सो माय डियर फ्रेंड्स, आपका ड्रीम को पूरा करना पड़ेगा हर हालत में। इसके लिए आपको एक जरिया दिया गया, लेकिन आप ड्रीम फुलफिल छोड़ के अगर इसी को ही अगर ज़िंदगी मान लोगे, इसी को ही अगर कंटिन्यू करोगे, सो आपका ड्रीम फुलफिल नहीं होगा। मैं भी न्यूट्रिशनिस्ट हूँ, मैं भी न्यूट्रिशन की बात करता हूँ, मैं भी न्यूट्रिशन मेंटेन करता हूँ, मैं भी सबको बोलता हूँ, लेकिन सेल्स मैंने नहीं छोड़ा। सेल्स मैंने नहीं छोड़ा, क्योंकि अगर सेल्स छोड़ दूंगा तो मेरा कमाई कम हो जाएगा, मेरा ड्रीम फुलफिल नहीं होगा। क्योंकि कितने दिन तक आप लड़ाई करोगे? आपका अर्ली रिटायरमेंट करना पड़ेगा। बोले वो क्या सर, रिटायरमेंट तो सरकारी नौकरी में होता है। यस, रिटायरमेंट होता है माय डियर फ्रेंड्स। 10 साल के आने वाला 10 साल के अंदर आपका ज़िंदगी का पूरा कमाई कर लेना पड़ेगा। सो दीज आर टुडे 22 मतलब 32 आपका क्या 10 साल कंप्लीट हो रहा है। यस, तो 32 को आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा। 32 मतलब 2032 इज द रिटायरमेंट डेट, रिटायरमेंट ईयर। उसके बाद मैंने कभी कमाई नहीं करूंगा। मन चाहे कर सकता है, लेकिन उसके लिए मैं नहीं भागूंगा। 10 साल के अंदर मेरा पूरा जिंदगी का जो कमाई है उसको मेरे को कर लेना पड़ेगा। नहीं तो क्या होगा, आप बुढ़ा बस मतलब एज तक आपको लड़ते रहना पड़ेगा। आप एवरीडे वही मारामारी, आज डाल, आज चाल, आज ऐसी कुछ प्रॉब्लम, आज वो प्रॉब्लम, गैस बढ़ गया, ऐसा बढ़ गया, दुनिया में महंगी बढ़ जाएगा, महंगा बढ़ गया। ये सोच आपको एवरीडे क्या करेगा, डिस्टर्ब करेगा। सो जिंदगी आपका हाथ में है, डिसीजन आपके हाथ में है। सो उसको क्या करना पड़ेगा, आपको पूरा करना पड़ेगा अकॉर्डिंग योर ड्रीम। सो ड्रीम देखना चाहिए, ड्रीम देखना हमेशा चाहिए, और ड्रीम को पूरा भी आपको करना पड़ेगा। और थर्ड जो चीज़ मैं जो आपको बोलना चाहता हूँ रिगार्डिंग न्यूट्रिशन, आपको एवरीडे बोला जा रहा है क्योंकि न्यूट्रिशन इज़ द सब्जेक्ट फूड रिलेटेड। वहाँ हम लोग जो मेडिकल रिलेटेड जो प्रॉब्लम हम लोग जो सोचते हैं, जो बोलते हैं मेडिकल प्रॉब्लम, ऐसे सर वो डायबिटिक के बारे में बोलिए, वो आपका जो ब्लड प्रेशर है उसके बारे में बोलिए ना थोड़ा। माय डियर फ्रेंड्स, अगर डायबिटीज़ के बारे में मैं आज बोलूँगा तो पूरा दिन खत्म हो जाएगा, ब्लड प्रेशर के बारे में बोलूँगा तो आज पूरा दिन खत्म हो जाएगा। आपको एक चीज़ हम लोग सिखा दिया, इंटरनल मेडिकल प्रॉब्लम एंड एक्सटर्नल मेडिकल प्रॉब्लम। इंटरनल मेडिकल प्रॉब्लम और रिलेटेड योर मेटाबॉलिक सिंड्रोम रिलेटेड प्रॉब्लम। सो कोई भी पेशेंट आपके पास आएगा, कोई भी लोग को आप देखेंगे, सो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको डायग्नोसिस करना पड़ेगा। डायग्नोसिस आप कैसे करोगे? आप बोलेंगे आप मैं तो एक्सरे नहीं कर रहा हूँ, मैं तो ब्लड टेस्ट नहीं कर रहा हूँ। वो आप उसको देखने के बाद, उसका प्रॉब्लम सुनने के बाद आपको पता चल जाना चाहिए।
जो आदमी का हुआ क्या। सो उसको कैसे आप कर सकते हो, उसको आप कैसे माहिरी कर सकते हो, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एवरीडे प्रैक्टिस करना पड़ेगा। काफ़ी सारा बीमार, काफ़ी सारा पेशेंट, उसके साथ बात करना, उसको देखना, उसके बारे में सोचना, तब जाकर क्या होगा, धीरे 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 एक एक्सपीरियंस आप गेन कर पाओगे, क्योंकि ऑल आर रिलेटेड विथ योर एक्सपीरियंस। रातों रात मैंने ड्रेस ले लिया, मेरा तो नाम न्यूट्रिशनिस्ट हो गया, मेरा पास प्रिस्क्रिप्शन आ गया, आप सबको विजिटिंग कार्ड मिलेगा, आज आपके नाम के पास एक न्यूट्रिशनिस्ट बोल के लिखा रहेगा, आप बांटते रहोगे, मामा जी दादाजी ये लो आप करते रहोगे, आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि आप सबको दिखा रहे हो। मैडम एक कार्ड रख दीजिए, आपको अगर कुछ प्रॉब्लम होगा ना आप मेरे को फ़ोन कर लीजिए, हम लोग करेंगे ऐसा। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, ये मज़ा आ रहा है, लेकिन इसमें आप इस मज़ा को छोड़ के और भी बहुत बड़ा मज़ा है, उसके अंदर आपको झांकना पड़ेगा, उसके अंदर आपको जाना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा, आप छोटी जगह में रह जाओगे। क्योंकि जो जिम्मेदारी आपको मिल रहा है, जो जिम्मेदारी आज से आपको मिल रहा है, ये बहुत बड़ा जिम्मेदारी है। आप बोलेंगे सर पूरा जिम्मेदारी हम लोग संभाल लेंगे, कोई बात नहीं, हम लोग तो सबको सिखाएंगे, नॉन वेज छोड़ो वेज खाओ। और मैं तो न्यूट्रिशनिस्ट हूँ, मैं तो न्यूट्रिशनिस्ट हूँ ना। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप किसी को गाइडेंस दे रहे हो, आपको भी उसका पेन में आना पड़ेगा, आपको भी वो दुख दर्द को झेलना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। आप दुनिया को बोल रहे हो सब लोग ऐसे करो, मैं नहीं करूँगा, ये नहीं होना चाहिए। कोई कोई लोग चोरी छुपे होटल में जाकर मेरे को देखता है, सर क्या खा रहे हैं, सर का प्लेट में क्या है, ठीक है, क्यूरियोसिटी है लोगों का, शायद सबको सर बोल रहा है, सर शायद खुद ही खुद ऐसे ऐसे तो नहीं कर रहा है। लेकिन जब भी वो लोग ऐसे क्वेरीज किया, वो देखा भाई मैं जो बोलता हूँ वही करता हूँ, वही कर रहा हूँ, क्योंकि तब जाकर मेरे को मज़ा आ रहा है, क्योंकि मेरे को पता है आप लोग क्या बोलोगे। जब आप वेजिटेरियन खाओगे, जब आप नॉन वेज छोड़ दोगे, क्या आपका तकलीफ होने वाला है मेरे को पता है। आप जब मेरे को पूछोगे, मैं एक एक आंसर आपको दे सकता हूँ, कैसे आप करोगे, क्या क्या तकलीफ होने वाला है। जब आपके सामने एक बिरयानी का प्लेट खड़ा रहेगा, उसमें से एक चिकन आपको देख रहा है, आप भी उसको देख रहे हो, ये फील आपके पास आएगा। आप एक पेशेंट को लिख दोगे, हेलो एक पर्चा है, ऐसे साइन कर दिया, शॉप छोड़ना पड़ेगा, मांस मछली, और वो आपको देख रहा है ऐसा, बोले शॉप छोड़ने के लिए बोल रहा है, तो खाऊं क्या, तो इससे तो मरना ही अच्छा है, उसको लगेगा। सो उसको आपको सलाह देना पड़ेगा, उसको आपको कन्विंस करना पड़ेगा। आप कन्विंस कैसे कर पाओगे अगर आप वो नहीं खुद का ज़िंदगी में नहीं कर रहे हो तो। सो निजी ज़िंदगी में उसको लागू करो धीरे धीरे, तब जाकर क्या होगा, आप दूसरे का तकलीफ आप समझ पाओगे। कोई आकर मेरे को जब बोलता है, मैं बोलता हूँ भाई तकलीफ होगा, कोई बात नहीं, 15 दिन के लिए कर लीजिए, शरीर ठीक हो जाएगा। मैं तो फास्टिंग के बारे में बात ही नहीं कर रहा हूँ, उपवास, मैंने 16 दिन फास्टिंग कर लिया था डायबिटीज को ख़त्म करने के लिए। 16 दिन फास्टिंग चल रहा है, 16 आवर्स का इंटरमीडिएट फास्टिंग, और उसके साथ पानी भी नहीं था। 16 दिन में डायबिटीज़ क्या क्या प्रॉब्लम था, सब लोग भाग गया डर के मारे, बोले कुछ ही नहीं दे रहा है, खाना नहीं दे रहा है, कैसे उसके शरीर में। लोग बोल रहे हैं भाई आप पतला हो जा रहे हो, हवा में उड़ जाओगे, ऐसे करोगे, लोग बोलेगा। क्योंकि आज का जो ज़िंदगी है ना, हम लोग हमारे लिए नहीं जीता है, लोगों के लिए जीता है। लोग क्या बोलेगा, ये मेरा बीवी है, लोग क्या बोलेगा, ये मेरा गर्लफ्रेंड है, लोग क्या बोलेगा, ये मेरा जूता है, लोग क्या बोलेगा, ये मेरा घर है, लोग क्या बोलेगा, लोगों के बारे में हम लोग ज़्यादा सोचते हैं। सो यू आर अ न्यूट्रिशनिस्ट, आपको लोगों को गाइड करना पड़ेगा, रास्ता दिखाना पड़ेगा। सो इसके कारण आपको क्या करना पड़ेगा, एवरीथिंग जो आप लोगों को सजेस्ट करोगे उसको पहले आपका ज़िंदगी में यूटिलाइज करो। आप बोलोगे फ्रूट खा लो, लेकिन उस फ्रूट खाने के बाद उसको तकलीफ हो रहा है, आपको कैसे पता चलेगा फ्रूट खाने से तकलीफ कौन सा होता है। आप कभी खाकर देखा, बोले सर एक दिन खाकर देखा था, उस दिन से बाद और नहीं खाया। और आप बोलेंगे सर आप खाने के लिए बोल रहे हो, खाने का पैसा ही नहीं है, फिर फ्रूट कैसे खाएंगे, ये भी हो सकता है लोगों का तकलीफ। तो इसीलिए फ्यूना हर्बल आपको साइड बाई साइड एक अर्निंग का पोटेंशियल भी दिया। आपके पास अगर हुनर है, क्वालिटी है, एंड ऑफ द टाइम आप तो वही मांग रहे हो ना, विटामिन एम, ABCD तो हम लोगों को मिल गया भाई, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन से ABCD मिल गया, सनलाइट से विटामिन D फोकट में हम लोगों को मिल गया। लेकिन विटामिन एम अगर आपके पास नहीं रहेगा, विटामिन एम, आपका मान इज्जत प्यार प्रेम सब कुछ, सोसाइटी में मान सम्मान कुछ भी नहीं रहेगा। विटामिन एम अगर आपके पास नहीं होगा तो, विटामिन एम मतलब मनी अगर रहेगा तो सब कुछ, विटामिन A B C D सब कुछ अरेंज कर पाएंगे। समझ पा रहे हो,
विटामिन ए का प्रॉब्लम, विटामिन डी का प्रॉब्लम, सी का प्रॉब्लम, ई के जेड तक प्रॉब्लम है, सब प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है अगर विटामिन एम उसके पास रहेगा। अगर विटामिन एम नहीं तो ए बी देने से प्रॉब्लम है, जेड है कि नहीं वो देखने में कोई भाई विटामिन एम नहीं तो वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। सो विटामिन एम भी हमारा ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है, उसके बारे में ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। कोई लोग सोच रहा है मनीमन सर ये तो ड्रेस कोड मिल गया, हम लोग एक चेयर कुर्सी लेकर घर में बैठ जाएंगे, बोलो भाई एक एक करके आओ, नाम बोलो और यहाँ मेरा विजिट रखो। एक दिन 2 दिन हो सकता है लेकिन ज़िंदगी में कंटिन्यू नहीं होगा। क्या आप उस लाइफ को वैल्यू क्रिएट कर पाओगे? जो लोग आपके पास आएगा 500 रुपया देगा, 1000 रुपया देगा, क्यों देगा? क्या रीज़न है? क्योंकि उनको आपको अच्छा करना पड़ेगा, आपका बातों से उसको भरोसा आना चाहिए, कॉन्फिडेंस आना चाहिए, ये नई न्यूट्रिशनिस्ट जो बोल रहा है इसको करके मेरे को देखना पड़ेगा। सो वो कॉन्फिडेंस जब उसको मिलेगा, वो जब उसका ज़िंदगी में वो कंटिन्यू करेगा और उसको भी रिजल्ट आएगा, तब जाकर लोग बोलेगा वो जो न्यूट्रिशनिस्ट है ना उस एरिया में बैठता है, वो दुबला पतला, वो बहुत अच्छा करता है, बहुत अच्छा बोलता है, सब कुछ सही कर देता है। क्योंकि ये एक ब्रांड बनेगा, ब्रांड। जब तक आप एक ब्रांड नहीं बन पाओगे, आपके पास पैसा, आपके पास विटामिन एम कुछ नहीं आने वाला है। सो आपको एक ब्रांड क्रिएट करना पड़ेगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? फाउंडेशन, आपका फाउंडेशन को मजबूत करना पड़ेगा। फाउंडेशन कैसे मजबूत होता है? आपका स्किल। आप आज का न्यूट्रिशनिस्ट हो, डिजिटल एरा में आप बैठे हो, दिल्ली में एक पेशेंट है जो एक न्यूट्रिशनिस्ट को ढूंढ रहा है, कैसे उसको पता चलेगा? सो आपको डिजिटली साउंड होना पड़ेगा, डिजिटली आपको इम्प्रूव करना पड़ेगा। मतलब आपका स्पोकन पावर, स्किल, आपका स्पोकन स्किल को डेवलप करना पड़ेगा, आपका बॉडी लैंग्वेज को डेवलप करना पड़ेगा। ऐसे कोई स्कूल में जाकर आप एक लेक्चर दे रहे हो, आप कोई स्कूल में बोल सकते हो सर मैं एक न्यूट्रिशनिस्ट हूँ, मैं एक खाने के बारे में एक पेरेंट्स, टीचर एंड स्टूडेंट को मैं 1 घंटा का एक लेक्चर दूंगा। वो बोलेगा कोई बात नहीं, आ जाइए। सो वहाँ जाकर आपको ऐसा इतना अच्छा लेक्चर देना पड़ेगा, आपको इतना अच्छा सेटिस्फेक्शन उन लोगों को प्रोवाइड करना पड़ेगा, लॉजिक देना पड़ेगा। वो लोग बोलेगा सर मेरे को क्या करना पड़ेगा? बोलिए सर आपका फ़ोन नंबर दीजिए, आपके पास मैं आते जाऊँगा। सो ऐसे ऐसे करके आपका पेशेंट बनेगा, आपका रिश्ता बनेगा, रिलेशन बनेगा, मानी बनेगा। सो आपको क्या करना पड़ेगा? सोसाइटी में वैल्यू क्रिएट करना पड़ेगा। वो वैल्यू कैसे हो सकता है? जब आप आपका स्किल को डेवलप करोगे। स्किल, ये देखो ये जो माइक्रोफोन में मैं बात कर रहा हूँ, इट्स ऑल्सो स्किल। क्योंकि आप बात अगर नहीं कर पाओगे, लोग कैसे समझेंगे भाई आप न्यूट्रिशनिस्ट हो क्या है? सो आपको बात करना पड़ेगा। और सेकेंड थिंग है बात आप कैसे करोगे? आपको बात में अगर लोग गुस्सा करेगा तो वो बात सुन के कोई किसी का फायदा नहीं है। सो बात भी ऐसी होना चाहिए, मधुर होना चाहिए, ऐसे लॉजिकली होना चाहिए। लोग आपको सुनते रहेगा, कब टाइम चला जाएगा लोगों को पता नहीं रहेगा। सो वो स्किल डेवलप करना पड़ेगा। इसके बाद आपका बॉडी लैंग्वेज डेवलप करना पड़ेगा। आप ड्रेस तो पहन लिया लेकिन आपका बॉडी लैंग्वेज बहुत खराब है। आपका बॉडी लैंग्वेज, ये जो मैंने आप खड़ा हुआ हूँ इधर, आपको क्या लगेगा हाथ मैं कहाँ रखूँ, ऐसे रखूँ। देखो आप भी जब यहाँ खड़ा हो जाओगे आपका हाथ के लेकर प्रॉब्लम होगा, आपका बॉडी ऐसे हिलेगा, आप ऐसे करके खड़ा होकर बात करोगे, किसी के साथ आप आंख नहीं मिलाओगे। सो ये बॉडी लैंग्वेज भी आपको विटामिन एम देगा, बिजनेस देगा, सक्सेस देगा। तो इसके कारण एवरीथिंग सबके साथ बात करना पड़ेगा, ऐसे आंख मिलाकर बॉडी लैंग्वेज क्रिएट करना पड़ेगा। तो ये कैसे हो सकता है? आप तो बोलेंगे सर स्टेज पे मेरे को कोई नहीं बुलाएगा। सो घर में ऐसा एक लकड़ी का माइक्रोफोन बना लो, ऐसे करो माय डियर फ्रेंड्स मैं एक न्यूट्रिशनिस्ट हूँ, मैं यहाँ से ऐसे पढ़ाई किया हूँ, मैंने ऐसा, तो आप बोलते रहो। शायद आपका दोस्त, आपका फ्रेंड हंसेगा, लेकिन धीरे धीरे क्या होगा? आपका स्किल डेवलपमेंट होते जाएगा। मैं कितने बार माइक्रोफोन लेकर बात करने के बाद आज जो बात मैं कर पा रहा हूँ, ओनली बिकॉज ऑफ दैट। ये जो पोएम मैंने अभी बोला 1988 में मैंने क्लास 4 में पढ़ा था इसको, इसके बाद लाखों बार इसको प्रैक्टिस किया, लाखों बार। मतलब जब भी मौका मिला इसको मैंने छोड़ दिया। सोचो आप लोग भी बोल रहे हैं कितना अच्छा कविता सर बोल रहा है सर। आप लोग सब बंगाली पोएम, हिंदी पोएम सीखा भी है, सुना भी। आप लोगों को अगर बोला जाएगा सर खुचलाना पड़ेगा, याद नहीं आ रहा है। मतलब सोचो ये भी बेचने का चीज़ है भाई। अगर 2-3 कविता, 2-3 गाना, 2-3 ऐसे कुछ डायलॉग आपका रेडी रहेगा, छोड़ते रहो बीच बीच में, लोग तालियां बजाएगा, वैल्यू क्रिएट होगा, लोग बोलेगा अरे बहुत बढ़िया लोग है, आदमी है, बहुत कुछ जानता है।
क्यों? क्योंकि आप कम्युनिकेशन का बिजनेस करते हो, लोगों का बिजनेस, क्योंकि लोगों का न्यूट्रिशनिस्ट। आप कोई कुत्ता बिल्ली का न्यूट्रिशनिस्ट नहीं हो, वो भौंकेगा आप बोलोगे ऐसे नहीं, आपको बात करना पड़ेगा, लोग आकर बोलेगा, लोग आकर बोलते जाएगा बोलते जाएगा बोलते जाएगा। कुछ दिन पहले ऑफिस में एक हस्बैंड उसका बीबी के लेकर आया, बीबी का साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम था और बीबी बोलते जा रहा है बोलते जा रहा है, मतलब वो चुप ही नहीं हो रहा है। हस्बैंड बोला अरे तुम रुको रुको, वो बोलते जा रहा है, उसका काफ़ी सारा प्रॉब्लम है, उसको लगता है भूत घुस गया, हाथ में घुस गया, बेड में घुस गया, पानी में घुस गया, वो ऐसी सब सोचता है एवरी टाइम। साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। डॉक्टर वो जितना था कलकत्ता में दिखा दिया, साइकियाट्रिस्ट दिखा दिया, ताबीज कब्ज जो भी होता है गांव गांव में वो भी कर लिया, अभी वो परेशान हो गया, कोई जगह में उसको इलाज नहीं मिल रहा है। घूम घूम के फियोना एकेडमी आ गया, मेरा पास जब भी बैठा मैंने बोला 30 दिन आपके पास समय है, 30 डेज का अंदर आप ठीक हो जाओगे। ये मैंने क्या किया, उसको साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट दे दिया। 30 दिन लगेगा, 30 दिन, 30 डेज, ओनली 30 डेज आप ठीक हो जाओगे। डॉक्टर साहब मैं ठीक, अरे भाई ठीक आज अभी चालू हो गया, अभी ठीक होना चालू हो गया, ठीक होना चालू हो जाएगा। ऐसे ऐसे करो, जब भी खराब सोच आपके अंदर आएगा आप बोलोगे भाई तू आते जा, मैं 10 अच्छा सोच सोचूंगा। अगर खराब सोच मेरा अंदर आ रहा है, भूत आ रहा है, कोई गोरिल्ला आ रहा है, कोई स्नेक आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, मैं 10 ठो ऐसा अच्छा सोच मैं सोचूंगा। सो ऐसे करके मैंने उसको बैलेंस किया। मैंने भी बोला मैं भी साइकियाट्रिस्ट प्रॉब्लम मेरा भी था बचपन में, मेरे को भी लोगों को मर्डर करने का मन करता है, ये करता है वो करता है। वो बोला तो हम लोग तो एक साथ दोस्त है तब, क्योंकि अगर पेशेंट आपको दोस्त नहीं मानेगा तो कैसे वो मन के बात करेगा आपको उसका आपका दर्द को महसूस करना पड़ेगा। वो जो पेशेंट है जो आपके पास आकर बैठ रहा है, वो बोला मेरा कमर में दर्द है, आपको भी महसूस करना पड़ेगा कमर में दर्द कैसे होता है। वो बोला मेरा छाती में दर्द है, आपको भी महसूस करना पड़ेगा, तब जाकर वो बोलेगा हाँ 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 ऐसे होता है ऐसे होता है ऐसे होता है। तो एक कम्युनिकेशन बनेगा। अगर ऐसे कम्युनिकेशन में आप कुछ भी उसको बोलोगे, उसका विश्वास में इतना ताकत होगा, उसी के अंदर वो ठीक होना चालू हो जाएगा। क्योंकि व्हाइट कोट सिंड्रोम बोल के एक मेडिकल प्रॉब्लम है, व्हाइट कोट सिंड्रोम। जैसे आप आज सादा कपड़े में आप बैठे हो, आप अगर किसी के पास जाओगे उसको बोलोगे मैं न्यूट्रिशन, वो कपड़ा देखकर पहले वो डर जाएगा, भाई तो डॉक्टर है। आप कभी भी बड़ा हॉस्पिटल में चला जाएंगे, वो क्या करेगा, प्रेशर मशीन खुल लेगा। प्रेशर मशीन जब भी खुल लेगा, आपको देखने के बाद उस मशीन, उस डॉक्टर, वो हॉस्पिटल, आपका प्रेशर बढ़ना चालू हो जाएगा। और जितना बड़ा हॉस्पिटल उतना बड़ा ज़्यादा प्रेशर, क्योंकि ये एक प्रॉब्लम ही है व्हाइट कोट सिंड्रोम। आपका घर में कोई पेशेंट बीमार हो गया, एक बहुत ऐसे सादा कपड़ा वाला कोई आदमी को लेकर जाइए, बोलिए ये अभी विदेश से आया, FRCS पास करके बहुत बड़ा डॉक्टर है, वो आकर ऐसे बोलेगा माँ जी कैसे हुआ आपका, क्या हुआ, कुछ नहीं होने वाला, ठीक हो जाएगा, चलिए मैंने दवाई लिख दिया, आप एक बार खा लीजिए ठीक हो जाएंगे। बस ये जो मैंने बोला कॉन्फिडेंस के साथ, आप एक बार खा लीजिए ठीक हो जाएंगे, उसी कारण वो ठीक हो सकता है। सो ह्यूमन बॉडी क्या होता है, उसका मेंटल के ऊपर काफ़ी सारा चीज़ चलता है, साइकोलॉजिकल। माँ आकर बोलता है बेटा मैं हूँ ना, कुछ नहीं होने वाला है, बस माँ है बोल दिया, प्रॉब्लम सॉल्व। सो आप जिस प्रोफेशन के साथ हो, एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है लोगों का जिंदगी। लोग दुखी होगा, तकलीफ होगा, हेल्थ प्रॉब्लम होगा, वो आपके पास आएगा, सोचेगा आप उसको कुछ कर सकते हो। सो इसीलिए आपको इतना नॉलेज आपको गेन करना पड़ेगा। न्यूट्रिशन किताब तब पढ़ लिया, इसके बाद और भी कुछ किताब आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा, तब जाकर क्या होगा, धीरे धीरे नॉलेज बढ़ेगा। और कल से हम लोग काफ़ी सारा मेडिकल ट्रीटमेंट रिलेटेड प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे। जूम मीटिंग में बात करेंगे, गूगल मीटिंग में बात करेंगे, हो सकता है हम लोग शाम को भी बात कर सकता है। मैडम उस मीटिंग में शायद नहीं आ सकता है, लेकिन फिर भी मोन्टू सर आ सकता है, मैं आ सकता हूँ। सो हम लोग आपको सिखाएंगे एक एक मेडिकल प्रॉब्लम रिलेटेड, क्योंकि आप अगर नहीं सीखेंगे, क्योंकि ये हमारा प्रेस्टीज हो गया। अभी मार्केट में जाकर लोग बोलेगा भाई फियोना एकेडमी का जो स्टूडेंट है कुछ नहीं जानता है, वो आपको गाली नहीं देगा, आपको तकलीफ नहीं देगा, मेरे को तकलीफ लगेगा। सो इट्स अ माई प्रेस्टीज। सो दैट इज़ वाई इस प्रेस्टीज को आगे हम लोगों को अच्छा तरीका करके मतलब ला जाना पड़ेगा, ले जाना पड़ेगा। उसके साथ हमारा भी जिम्मेदारी है, आपका भी जिम्मेदारी है। सो ये जो प्रेस्टिजियस प्रोफेशन, ये जो प्रेस्टिजियस नेम न्यूट्रिशनिस्ट, इसका लाज रखना पड़ेगा माय डियर फ्रेंड, इसका लाज रखना पड़ेगा, इसका मान रखना पड़ेगा, सम्मान रखना पड़ेगा। नहीं तो क्या होगा, आप पीछे चला जाओगे, लोग आपको झूठा बोलेगा। ये नहीं, मैं चाहता हूँ आपको
कोई न्यूट्रिशनिस्ट को, कोई फियोना न्यूट्रिशनिस्ट को बोलेगा झूठा, वो कुछ नहीं जानता है। सो आप और हम मिलकर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे और सोसाइटी का जो प्रॉब्लम है उसको भी हम लोग मदद करेंगे, हम लोग हेल्प करेंगे। ओके, थैंक यू, विश यू हैप्पी एंड हेल्दी लाइफ।